راجہ نواز اور نازا نے اپنی ہلاکت کا یقین دلا کر تمام مخالفین کو کتوں کی طرح اپنے پیچھے دوڑنے سے روک دیا تھا۔ اب وہ دشمنی کرنے والوں سے بے فکر ہو کر جا رہے تھے۔ راجہ لینڈ کروزر ڈرائیو کر رہا تھا۔ نازا نے پوچھا ہم کب تک یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ وہ بولا تم بیزار ہو گئی ہو، تمہیں مہم جوئی کی عادت نہیں ہے۔ نازا نے کہا میں تمہاری خاطر اپنے مزاج کے خلاف ہر بات کی عادی ہو سکتی ہوں، لیکن کوئی ایسی جگہ، ایسا مکان تو ہو جہاں ہم کچھ دنوں تک پیار بھری ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ راجہ نے کہا میں نے مستقل ایک جگہ رہنے کے لیے اپنی اور تمہاری موت کا ناٹک رچایا ہے۔ کاشف اکبر کے علاوہ تمہارے بابا سائیں اور تمہارا بھائی ان تصویروں کو دیکھ کر کچھ دنوں تک تم پر ماتم کر کے صبر کر لیں گے۔ کوئی بھی مخالف نہ یہ سوچ سکے گا اور نہ کبھی سمجھ سکے گا کہ ہم پھر کراچی آ کر ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی کیا ہم کراچی واپس جا رہے ہیں؟ راجہ نے کہا ہاں، دوسرے راستے سے جا رہے ہیں۔ امیر حمزہ ملک سے باہر کہیں مصروف ہے، اس کی عدم موجودگی میں مجھے کراچی رہنا چاہیے۔ نازا نے پوچھا کیا امیر حمزہ تمہارا دوست ہے؟ وہ بولا دوست بھی ہے اور ایسی مہماتی زندگی گزارنے کے معاملات میں استاد بھی ہے۔ اسے آگ اور خون کے سمندروں سے گزرنا آتا ہے اور یہ ہنر میں نے اس سے سیکھا ہے اور آئندہ بھی سیکھتا رہوں گا۔ نازا نے کہا اس سے تمہارے تعلقات اتنے گہرے ہیں لیکن کبھی تم نے فون پر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ بولا تمہارا عشق مجھے اس طرح بھٹکا رہا ہے کہ میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کس ملک میں ہے۔ وہ میرے لیے پریشان ہوگا کہ میں کراچی سے کہاں چلا گیا۔ میرا موبائل فون بدل گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہمارا فون کے ذریعے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ کراچی پہنچتے ہی اس کے جانثاروں سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس سے رابطہ بھی رہا کرے گا۔ نازا نے کہا ایک بات پوچھوں؟ راجہ بولا کیا ہمارے درمیان کوئی تکلف باقی رہ گیا ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے اجازت طلب کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولی ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں رہا، میں تمہارے اور حمزہ صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں کہ نئے نئے جانی دشمن پیدا کرتے جا رہے ہیں؟ جب ایک آرام دہ پرسکون زندگی گزار سکتے ہو تو خطرات مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا جب تک خطرات مول نہ لیے جائیں تب تک زندگی نہیں سنورتی۔ تم سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے میں اب تک خطرات سے کھیلتا رہا ہوں، عارضی طور پر اپنی اور تمہاری ہلاکت کا ڈرامہ رچایا ہے۔ آئندہ کبھی یہ جھوٹ سامنے آئے گا تو پھر دشمن پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا اپنے آرام و سکون کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ نہیں کہہ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ کر بولی تم میرے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے اپنی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ میں فخر کرتی ہوں کہ تم میرے لیے ساری دنیا سے لڑتے رہو گے۔ وہ بولا اسی طرح ایک دن پوری قوم مجھ جیسے اور امیر حمزہ جیسے مجاہدوں پر فخر کرے گی کہ ہم پاکستان میں عام انسانوں کی خوشحالی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ وہ بولی آدھی صدی سے زیادہ گزر چکی ہے راجہ، پاکستان میں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہم وڈیروں اور سیاستدانوں سے خوشحالی کے ذرائع چھین سکے۔ تم برا نہ ماننا، تمہاری تمام جد و جہد ناکام رہے گی۔ 50 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ تم خواب غفلت میں رہنے والی قوم کو جگانے کی ناکام کوششوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا ہاں کبھی کبھی اپنی عوام کی بے حسی سے مایوسی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے باؤ جی میں کراچی آ کر لٹ گیا، لاہور جانے کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہے، کچھ رقم دے دو۔ وہ پاکستانی قوم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے اور یہی پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کے پاس 3 ذاتی ہوائی جہاز ہیں جس کے ایک جہاز پر فی گھنٹہ 10 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں لاکھوں افراد کو ایک وقت روٹی ملتی ہے، دوسرے وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی ملک کے شاہی محل میں مہمانوں کے لیے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے لیے جو فرنیچر تیار ہوتا ہے اس پر 10 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک حکمران کے جاگنے سے لے کر سونے تک ہر روز 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت اس ملک کا ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے انہیں قلم کے ذریعے اور ہماری جد و جہد کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ نازا بولی ہاں ہم وڈیروں کے بھی اخراجات روزانہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں۔ ہم موجودہ سیاستدانوں کو سانپ کی طرح دودھ پلا کر پالنے کے لیے کسانوں اور مزدوروں کا لہو نچوڑتے ہیں، لیکن تم دن رات ان سے لڑتے رہو گے تو کیا یہ اپنا چلن بدل دیں گے؟ راجہ نے کہا ہاں ایک ذرا عوامی شعور کی ضرورت ہے۔ شعور یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ لیں کہ ملک پر حملہ کرنے والے دشمنوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہمارے اپنے ملک کے اندر ہیں جنہیں ہم نے خود اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ دوسرا شعور یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ الیکشن میں ایسے سانپوں کو ووٹ نہیں ڈالیں گے جو ہمیں ڈستے آ رہے ہیں۔ جو قوم کروڑوں کی آبادی میں سے خوف خدا رکھنے والے دیانتدار سیاستدانوں کو پہچان کر اپنا نصیب نہ بدل سکے وہ قوم بہت ہی کم فہم اور ہمیشہ بد نصیب رہے گی۔ اور تمہاری باتوں کا جواب ہے کہ جو خوشحالی مانگنے سے نہیں ملتی وہ چھین لی جاتی ہے۔ میں تمہیں مانگتا تو تم کبھی نہ ملتی، اب تمہیں چھین کر یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ہم نے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا کہ دے بی بی جی اللہ کے نام پر دے میاں جی۔ راجہ نواز کی آخری بات ایسی تھی کہ نازا لاجواب ہو کر رہ گئی۔ یہ تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک وڈیرے اور سیاستدان سے اسے چھین
छीन कर हासिल किया है और वो खुद एतराज नहीं कर रही है क्योंकि उसे मोहब्बत से भरपूर खुशहाली मिल रही है। राजा नवाज ने अचानक हेडलाइट्स बुझाकर गाड़ी रोक दी। तारीकी पहले ही थी, गाड़ी के सामने भी गहरी तारीकी छा गई। नाजा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, नाजा, मेरे साथ रहती हो तो बातों के दौरान में भी आगे पीछे का ख्याल रखो। अभी कोई बहुत दूर से भागता हुआ झाड़ियों के पीछे गया है। वो बोली, फिर कोई खतरा है? वो डैशबोर्ड का खाना खोलकर बुलेट किट्स निकालता हुआ बोला, तुम्हारा रिवॉल्वर और मेरा टीटी पूरी तरह लोड है, फिर भी एक्स्ट्रा बुलेट किट्स अपने पास रखो। अपनी तरफ का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर चारों हाथ पांव से रेंगती हुई गाड़ी के पीछे जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। वो राजा की हिदायत के मुताबिक दरवाजा खोलकर रेंगती हुई गाड़ी के पीछे आई। उसे राजा की सरगोशी सुनाई दी। वो करीब आकर उससे जरा टकराई। राजा ने उसके कान से मुंह लगाकर कहा, हम हेडलाइट्स की रोशनी में देखते रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आंखें अंधेरे में कुछ न कुछ देखने की आदी हो जाएंगी। फिलहाल हल्की सी आहट सुनने की कोशिश करो, सामने और दाएं बाएं देखती रहो। वो गहरी तारीकी में देखने और आहटें सुनने की कोशिशें करने लगी। 1 मिनट के बाद ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोग दौड़ते हुए एक तरफ गए हों। उसके बाद खामोशी छा गई। नाजा को अपने कान में सरगोशी सुनाई थी, जमीन पर लेट जाओ और रेंगती हुई गाड़ी के नीचे जाओ, जल्दी। लैंड क्रूजर इतनी ऊंची होती है कि आसानी उसके नीचे लेटा जा सकता है। उसके साथ राजा भी औंधे मुंह लेट कर रेंगता हुआ नीचे आया। फिर नाजा उसकी हिदायत के मुताबिक बाईं करवट होकर वहां से बाहर तारीकी में घूर घूर कर देखने और कुछ सुनने की कोशिशें करने लगी। राजा उसके साथ लगा हुआ दाईं करवट लेटा हुआ था। यकबयक तड़ातड़ फायरिंग हुई। कई गोलियां गाड़ी की बॉडी पर आकर लगी। वो लोग मालूम करना चाहते थे कि हेडलाइट्स बुझाकर वो गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, सीटों के नीचे दुबक गए हैं या बाहर निकलने की फिक्र में हैं, निहत्ते हैं या मुसल्ला हैं। नाजा और राजा की तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं हुई। उससे अंदाजा किया जा सकता था कि उनके पास मुकाबले के लिए हथियार नहीं है। वो पसोपेश में रहे। कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक ने बुलंद आवाज से कहा, हम जान नहीं लेंगे, सिर्फ माल लेंगे, गाड़ी की लाइटें जलाकर बाहर आ जाओ। उनकी तरफ से कोई जवाब न मिला। उनमें से एक ने आखिरी वार्निंग दी, फिर भी उस गाड़ी की तरफ से कोई आवाज सुनाई न दी। इसके बरक्स गाड़ी के दाएं और बाएं तरफ से उनकी आवाजें सुनकर दोनों को उनकी पोजीशन मालूम हुई। तारीकी में गुरिल्ला जंग लड़ने की मुख्तलिफ हिकमत अमली आजमाई जाती है। उन्होंने ये हिकमत अमली आजमाई। बैक वक्त फायरिंग करते हुए गाड़ी के करीब आए। अगर गाड़ी वाले छुपे होंगे तो गोलियों की मुसलसल बौछार से घबराकर चीखते चिल्लाते और जान की अमान चाहते हुए गाड़ी से बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। दाएं तरफ के एक शख्स ने चीख कर कहा, दौड़ो और एक साथ फायरिंग करते हुए गाड़ी के पास आओ। 1, 2, 3। 3 की गिनती खत्म हुई। कई गन्नों से फायर का शोर बुलंद हुआ। वो सब गोलियां चलाते और दौड़ते हुए गाड़ी के करीब आए। इतनी देर में आंखें करीब की चीजों को देखने की आदी हो गई थी। उन्हें इन दौड़कर आने वालों के पैर दिखाई देने लगे। राजा ने नाजा से कहा, फायर। दोनों ने बैक वक्त गोलियां चलाईं। रात के सन्नाटे में उनकी चीखें गूंजने लगीं। किसी के गोलियां घुटने के नीचे, किसी के घुटने के ऊपर, किसी को दोनों टांगों के दरमियान लगती गईं। वो उछल उछल कर गिरने और तड़पने लगे। जब वो जमीन पर गिरे तो उन्होंने उनके सरों और सीनों में गोलियां मारी। शायद एक ही जख्मी रह गया था। वो तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था। राजा ने आवाज की समत गोली मारकर कराहने की आवाज को हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। नाजा सर उठाकर गाड़ी के सामने तारीकी में अंधाधुंध फायर करने लगी। राजा ने गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ यही किया। वो नहीं जानते थे कि दुश्मन आगे पीछे से आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने एहतियाती तदाबीर पर अमल किया। ये तदाबीर काम आई। गाड़ी के पीछे से 3 चीखें सुनाई थी। फिर खामोशी छा गई। ये खामोशी बड़ी देर तक रही। उस वक्त ये खौफ और तजस्सुस था कि सब मर चुके हैं या बाकी रहने वाले ताक में लगे हैं। राजा ने सरगोशी की, पीछे की तरफ खिसकती हुई गाड़ी के पीछे जाओ। पीछे गाड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर छत पर लेट जाओ। वहाँ छत पर सामान्य सफर बांध कर रखने के लिए पीछे एक छोटी सी सीढ़ी थी। थोड़ी सी देर में वो दोनों कोई आहट पैदा किए बगैर छत पर आकर लेट गए। दुश्मन दूर रहकर गाड़ी के नीचे फायर करते तो गोलियां उन्हें नहीं लग सकती थी। उन दोनों को मारने के लिए जरूरी था कि वो कुछ करीब आकर जमीन पर लेटकर फायरिंग के जरिए नीचे लेटने वालों को हलाक कर सकते थे। लेकिन आधे घंटे तक छत पर लेटे रहने के बाद भी कोई गाड़ी के नीचे फायर करने नहीं आया। नाजा ने सरगोशी की, बड़ी देर हो चुकी है, उन्होंने हमें तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। राजा ने कहा, शायद अब कोई नहीं रहा। तुम आवाज पैदा किए बगैर नीचे उतर कर गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो छत पर लेटे ही लेटे खिसकती हुई पीछे सीढ़ी से उतरकर गाड़ी के अंदर आ गई। राजा ने चारों तरफ तारीकी ही तारीकी देखी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो छत पर से कूद कर नीचे आया, स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाजे को बंद किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर उसे आगे बढ़ाने से पहले हेडलाइट्स को ऑन किया।
गाड़ी 2-4 गज आगे बढ़ी, फिर राजा ने उसे रोक दिया। सामने कुछ दूर हेडलाइट्स की रोशनी में 2 आदमी नजर आए। उनमें से एक खूबरू जवान मैले फटे कपड़े पहने हुए था। दूसरा शख्स अपने मुंह पर ढाटा बांधे क्लैशनकोफ की नाल को उस जवान की गर्दन से लगाए कह रहा था, पहले हमारे लोगों ने समझा तुम पुलिस वाले हो, मगर नहीं, तुम मुसाफिर हो, और ये जो जवान मेरे आगे हैं इसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। दौलत कौन नहीं चाहता, तुम चाहते हो तो मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। मुझको अपने पीछे बिठाकर वडेरे अला बख्श के पास ले चलो। ये अला बख्श का एक ही जवान बेटा करीम बख्श है। बोलो 2 करोड़ चाहते हो? राजा ने गाड़ी की खिड़की से एक हाथ और सर निकाल कर कहा, 2 करोड़ 2 पैसे नहीं होते। इतनी बड़ी रकम से मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर तुम पीछे बैठोगे तो मेरे लिए खतरा बन जाओगे। मैं तुम्हारी क्लैशनकोफ के निशाने पर रहूंगा। तुम अगली सीट पर मेरे साथ बैठ सकते हो। वो दोनों रोशनी में थे। नाजा और राजा हेडलाइट्स के पीछे तारीकी में। उस डाकू को नजर नहीं आ रहा था कि राजा के हाथ में टीटी है। डाकू का ख्याल था कि राजा 2 करोड़ के लालच में गोली नहीं चलाएगा। उस लालच देने वाले की शलवार घुटने के नीचे लहू से भीग रही थी, गोया उसके पैर में गोली लगी थी। वो तारीकी में छुपकर कहीं अपने खुफिया अड्डे तक जख्मी पैर के बायस नहीं जा सकता था। उसे गाड़ी की जरूरत थी और वो बहुत बड़ा लालच देकर ही राजा की गाड़ी हासिल कर सकता था। डाकू ने कहा, तुम्हारे साथी के पास भी हथियार है, वो मेरे साथ पिछली सीट पर बैठेगा तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। राजा बोला, हाँ ये ठीक है, तुम मेरे साथी के साथ पीछे बैठ सकते हो। मेरी इस 2 करोड़ की असामी के साथ चले आओ। उसने क्लैशनकोफ से उस जवान करीम बख्श को धक्का देते हुए आगे बढ़ाया, खुद उसके पीछे लंगड़ाते हुए चलने लगा। चलते वक्त तवाजुन कायम नहीं रख सकता था, इसलिए क्लैशनकोफ की नाल उस जवान की गर्दन पर से कभी कभी हट जाती। एक बार जैसे ही वो नाल गर्दन से हटी, राजा ने फायर कर दिया। ठाई की आवाज के साथ ही डाकू के हलक से चीख निकली। वो क्लैशनकोफ पकड़े लड़खड़ाया। राजा ने दूसरी गोली मारी। इस बार हाथ से क्लैशनकोफ छूट गई और वो धप से जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। वो बड़ा जीदार था। एक तो पहले ही पैर में गोली लगी थी, राजा ने 2 गोलियां मारी थी। उसके बावजूद उसमें इतनी जान थी कि वो जमीन पर गिरने और तड़पने के दौरान में क्लैशनकोफ उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। राजा ने चीख कर कहा, करीम बख्श, इसे हथियार न उठाने दो। करीम बख्श ने फौरन एक कदम आगे बढ़ाकर क्लैशनकोफ को उठाया, फिर तड़तड़ फायर करते हुए उसे गोलियों से छलनी कर दिया। आखिर वो हमेशा के लिए साकित हो गया। करीम बख्श ने घूमकर गाड़ी की तरफ देखा। राजा ने कहा, हम तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। हमें दोस्त और मददगार समझते हो तो हथियार फेंक कर यहाँ आ जाओ। उसने चंद लम्हों तक अपने हाथ में क्लैशनकोफ को देखा और सोचा, और फिर उसे एक तरफ फेंक कर सर झुकाए चलता हुआ गाड़ी के पास आ गया। नाजा ने गाड़ी से उतरकर कहा, यहाँ सामने बैठो। वो पीछे आकर बैठ गई। करीम बख्श ने राजा के पास अगली सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने 3 लाशें दिखाई दे रही थी। राजा ने करीम बख्श से पूछा, कहाँ जाना है? इलाके का नाम और रास्ता बताओ। वो बोला, बख्शू गोठ यहाँ से 15 किलोमीटर पर होगा। वहाँ सैकड़ों किलोमीटर हमारी जमीन जायदाद है, मुझे वहाँ पहुँचा दें। बाबा साईं आपको मुंह मांगी रकम देंगे। राजा ने कहा, हमें रकम का लालच होता तो उस डाकू को न मारते। करीम बख्श बोला, बहुत दलेर हैं। उस डाकू के 9 साथी थे, आपने किसी को भागने नहीं दिया, सबको मार डाला। इनका अंजाम यही होना चाहिए। राजा ने कहा, तुम अपनी बात करो, क्या वो तुम्हें अगवा करके ले गए थे? वो बोला, हाँ, बाबा साईं से मेरी वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। वो आपसे झूठ कह रहा था कि मेरे जरिए 5 करोड़ लेने वाले हैं। वो आपको धोखा देकर ये गाड़ी हासिल करना चाहता था। वैसे मैं एक ही बेटा हूँ और एक 18 बरस की बहन है। बाबा साईं मेरे लिए 5 करोड़ भी दे सकते हैं। मैं ही उनकी तमाम दौलत और जायदाद का अकेला वारिस हूँ। बहन को तो कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने पूछा, बहन को दौलत और जायदाद से क्यों महरूम किया जाएगा? वो बोला, बाबा साईं मेरी बहन जमीला से हक बख्शवाएंगे। राजा ने अंदर के अकब नुमा आईने में नाजा को देखा। नाजा भी उसे देख रही थी। सिंध में अपनी बेटियों से हक बख्शवाने की रस्म बहुत कदीम है। बहुत से बलोच और सैयद कबीलों के सरकर्दा लोग अपने खानदान से बड़ा दूसरे खानदान को नहीं समझते, लिहाजा अपने से कमतर खानदान में बेटी को ब्याहना अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन असल मामला दौलत और जायदाद का है कि बेटी ब्याह कर जाएगी तो घर की दौलत से अपना हिस्सा ले जाएगी। वो किसी को दामाद बनाकर अपनी मिल्कियत में उसे हिस्सेदार बनाना नहीं चाहते। हक का मतलब है शौहर, यानी औरत अपने शौहर को अपना हक कहती है। बाप अपनी बेटी की गोद में कुरान शरीफ रख कर कहता है, बेटी मैंने तुम्हारा हक तुम्हें दे दिया है, अब तुम सारी उम्र कुरान शरीफ के साथ जिंदगी गुजारोगी और मैके में सब्र शुक्र से रहोगी। इस अमल को हक बख्शवाना कहते हैं।
राजा ने कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन जमीला से मोहब्बत है? करीम बख्श ने कहा, वो मेरी एक ही सगी बहन है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। राजा ने कहा, चाहते भी हो और दौलत में से उसे उसके हिस्से से महरूम भी कर रहे हो। सुर्ख जोड़ा पहनने और दुल्हन बनने का ख्वाब हर लड़की देखती है, तुम अपनी मोहब्बत करने वाली बहन से उसके ख्वाब भी छीन रहे हो। वो सर झुका कर सोचने लगा। नाजा ने कहा, तुम तालीम याफ्ता लगते हो, ये तो जानते होगे कि ऐसी जालिमाना रस्म के बायस कितनी लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं और कितनी घर से भाग जाती हैं। फिर उन भागने वालियों का अंजाम क्या होता है? वो घर से बाहर की दुनिया में ठोकरें खाती हैं। अगर कोई खोजी उसे पकड़ कर वापस लाता है तो उस बेटी को इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो मैली हो चुकी है। करीम बख्श ने कहा, इंसान के पास इल्म की रोशनी हो तो अंधेरा समझ में आता है। मैं सोचता था कि ऐसी रस्म में मर्दों की खुदगर्जी है, मगर बाबा साईं के सामने जबान खोलने और मुखालिफत में कुछ कहने की जुर्रत नहीं होती, लेकिन अब होगी। उसने पूछा, अब कैसे जुर्रत पैदा होगी? वो बोला, मैंने डाकुओं की कैद में रहकर सोचा, बाबा साईं जब मुझे वापस हासिल करने के लिए डाकुओं को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो क्या वो 1 करोड़ मेरी बहन को सुहागन नहीं बना सकते? 1 करोड़ हो या 1 रुपया, डाकू को दिया जा सकता है, बेटी को नहीं। नाजा ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा, अगर तुम ये बात दिल से कह रहे हो तो तुम बेशक एक अच्छे और सच्चे भाई हो। वो बोला, बाजी अगर मेरे पास फोन होता तो मैं अभी अपनी सच्चाई साबित कर देता। वो बोली, हमारे पास मोबाइल फोन है, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, आप मुझे फोन दें और सिर्फ मेरी बातें सुने। नाजा ने उसे फोन दिया, उसने उसे ऑन करके नंबर डायल किए, फिर राब्ता होने पर कहा, बाबा साईं मैं करीम बख्श बोल रहा हूँ। बाप ने खुशी से ऊंची आवाज में पूछा, मेरे बेटे तुम कहाँ हो? उस डाकू ने कहा था कि मैं रकम तैयार रखूं, वो जब मुतमईन होगा कि पुलिस वाले दूर दूर तक नहीं हैं तो वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा कर रकम ले जाएंगे। करीम बोला, बाबा साईं अब ये लोग 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कहते हैं आप राजी हो जाएंगे तो ये अभी मुझे आपके पास पहुंचा देंगे। बाप बोला, बेटे वो मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने एक ही बेटे की जान बचाने के लिए उनके मुतालिबात जरूर पूरे करूंगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि अगर तुम अभी मेरे पास आ जाओ, उनसे कहो उन्हें 3 करोड़ मिल जाएंगे। वो बोला, बाबा साईं अगर मैं आपको मुफ्त में मिल जाऊं तो क्या आप मेरी बहन जमीला को 3 करोड़ देकर उसे सुहागन बनाकर रुखसत करेंगे? बाप ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं जमीला से हक बख्शवाने वाला हूँ। वो बोला, इसलिए हक बख्शवाएंगे कि बेटी हमारा हिस्सा लेकर अपने घर से दूसरे खानदान में न जाए, लेकिन वही हिस्सा आप एक डाकू को देने के लिए राजी हैं। बाप ने कहा, बेटे अपने लिए मेरी मोहब्बत को समझो, मैं तुम्हारी खातिर 3 करोड़ का नुकसान करूंगा। वो बोला, यही रकम बेटी को देंगे तो नेकी भी होगी और फराइज की अदायगी भी। बाप ने कहा, तुम कभी कहते हो डाकू 3 करोड़ मांग रहे हैं और कभी कहते हो डाकू को कुछ नहीं देना, इसी रकम से मैं बेटी को दुल्हन बना दूं। वो बोला, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ये लीजिए आप डाकू साहब से बात करें। उसने फोन राजा की तरफ बढ़ाया। राजा एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से फोन लेकर कान से लगाकर भर्राई हुई आवाज में बोला, साईं मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं आधे घंटे के अंदर करीम बख्श को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, इस नेक काम के लिए 1 पैसा भी नहीं लूंगा। तुम भी नेकी करो, अपनी बेटी जमीला को 1 हफ्ते के अंदर दुल्हन बनाकर इज्जत व आबरू से रुखसत करो और अपनी मिल्कियत में से उसका जायज हक अदा करो। बोलो मंजूर है? वो जल्दी से बोला, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। आपके जैसा नेक दिल डाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि मेरा बेटा अभी मुझे मिल जाए। राजा ने सख्त लहजे में कहा, काम की बात करो, क्या बेटी की शादी 1 हफ्ते के अंदर करोगे? वो बोला, करूंगा, जरूर करूंगा। राजा ने कहा, बेटी को उसका जायज हक दोगे और दोगे तो कितना दोगे? बाप बोला, मैं हिसाब करूंगा कि मिल्कियत में से उसका हक कितना निकलता है। राजा ने कहा, फिर हिसाब किताब होने तक मैं तुम्हारे बेटे को अपनी कैद में रखूंगा, जब तुम बेटी की शादी कर दोगे तो उसे रिहा कर दूंगा। वो बोला, नहीं नहीं, अभी मिलने वाली खुशियां मुझसे न छीने। जो 3 करोड़ रुपए डाकू को, मेरा मतलब है आपको देने वाला था, वो रकम मैं अपनी बेटी जमीला को जरूर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस एतमाद के साथ अभी करीम बख्श को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे। 1 हफ्ते के अंदर तुमने बेटी की शादी न की और उसे 3 करोड़ रुपए न दिए तो 8वें दिन खामखा तुम कितने ही हिफाजती इंतजामात कर लो, मैं और मेरे आदमी तुम्हें और करीम बख्श को कत्ल कर देंगे। जब तुम बाप बेटे दुनिया में नहीं रहोगे तो बेटी जमीला तमाम दौलत और जायदाद की कानूनी तौर पर मालिक बन जाएगी। राजा ने फोन बंद करके पीछे बैठी हुई नाजा को दिया। करीम बख्श ने कहा, ये आपने अच्छा किया, जमीला की शादी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मुकर्रर कर दिया। मैं भी इस जिद पर कायम रहूंगा कि 1 हफ्ते तक सिर्फ 1 वक्त खाना खाऊंगा। बाबा साईं मुझे भूखा प्यासा नहीं देख सकेंगे, वो जरूर हक बख्शवाने की रस्म से बाज आ जाएंगे। एक जगह पहुंचकर उसने रास्ता बदलने की रहनुमाई की। आगे 2-3 मोड़ के बाद एक बस्ती के कच्चे कच्चे मकानात नजर आए। पिछले पहर का पूरा चांद निकल आया था। चांदनी में बहुत दूर एक ऊंची हवेली नजर आ रही थी। करीम बख्श ने कहा, वही हमारी हवेली है। राजा ने बस्ती में दाखिल होने से पहले ही गाड़ी को रोक कर कहा, हम
हम आगे नहीं जाएंगे, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, तुम मेहमान नवाजी की जिद न करना। वो बोला, साईं आप मुझ पर और मेरी बहन पर बहुत बड़ा एहसान करके मेरे घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे तो मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। राजा ने कहा, तुम भी हमारी जान बचाने के लिए मेजबान न बनो। तुम नहीं जानते कि हमारे पीछे बहुत खतरनाक दुश्मन हैं और तुमसे चाहते हैं कि यहाँ किसी से हम दोनों का और उस लैंड क्रूजर का जिक्र न करना। यही बयान दो कि सिर्फ एक मुसल्ला शख्स टोयोटा सुजुकी में था, वो तुम्हें यहाँ पहुंचा गया है। करीम बख्श बोला, अगर आप दोनों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए झूठ बोलना जरूरी है तो मैं बोलूंगा, लेकिन आप भी वादा करें। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात काबिल अमल हुई तो मैं वादा करता हूँ। तुम क्या चाहते हो? वो बोला, आप बाजी के सर पर हाथ रख कर कहें कि बाबा साईं ने एक हफ्ते के अंदर अपना वादा पूरा न किया तो आप किसी भी दिन यहाँ आकर हम बाप बेटे को गोली मार देंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए नाजा के सर पर हाथ रख कर कहा, अगर तुम्हारे बाबा साईं ने एक हफ्ते के अंदर बेटी की शादी न की और उसे 3 करोड़ न दिए तो मैं तुम दोनों बाप बेटे को गोली नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारे बाप को जिंदा रख कर जमीला की शादी करने पर मजबूर कर दूंगा। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर गया। नाजा पिछली सीट से आकर राजा के पास बैठ गई। करीम बख्श ने मुसाफा करते वक्त राजा के हाथ को चूमा। नाजा ने उसके सर पर हाथ रखकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिर वो गाड़ी को यू टर्न देकर वहां से जाने लगे तो करीम बख्श रो रहा था और आस्तीन से आंसू पोंछ रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।